Hey guys, good morning everyone. So today we are going to learn this. What is that? We are going to learn subordinate clause and in which we are going to learn the parts of subordinate clause. Okay. And what are they? They are adjective, adverb and noun. Adjective subordinate clause, adverb subordinate clause and noun subordinate clause. Okay. Let's see, and we know what is adjective, what is adverb and what is noun. You can give the answers in the comment section also. What is adjective, what is adverb and what is noun. So what is adjective? So adjective is a word which qualifies noun. What is adverb? Adverb is a word that qualifies verb. And what is noun? So noun is the name of a person, place, animal or thing. Okay, let's move and we'll see what are clause, what are adjective clause, what is adverb clause and what is noun clause. Okay, so guys, ready for that? And let's start. So our next is what we are going to learn in this chapter. So we are going to learn kinds of subordinate clause, and there are three kinds of subordinate clause, that are adjective clause, adverb clause and noun clause. In which first we will recap that what is clause. So what is clause? What we have seen in the previous classes. A clause is a group of words which contains a subject and a predicate and is a part of a sentence. वो एक part होता है sentence का जिसमें subject भी होना चाहिए, predicate भी होना चाहिए. ठीक है? अगर subject predicate नहीं है तो उसका कोई sense नहीं होगा, और जब subject और predicate नहीं रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? Yes, that is said to be phrase. ठीक है, जब सब्जेक्ट नहीं है ना ही वर्ब है और उसका कोई सेंटेंस मीनिंग नहीं है तो उसको बोलते हैं फ्रेज. लेकिन जब मीन्स सब्जेक्ट रहता है सेंटेंस में और प्रेडिकेट रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लाउज बोलते हैं, और वो एक पार्ट होता है सेंटेंस का. ठीक है, तो व्हाट इज क्लाउज? इट इज क्लियर. ए क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, ए प्रेडिकेट एंड इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ओके, let's see kinds of subordinate clause. We'll discuss the kinds of subordinate clause, that is adjective, adverb and noun clause. Okay, let's see. First one, we are going to learn about adjective clause. So a clause which does the work of an adjective is called an adjective clause or relative clause. इसको relative clause भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Relative clause और adjective clause. तो adjective clause अगर एडजेक्टिव जैसा वर्क करता है तो एडजेक्टिव का वर्क पहले क्या होता है? तो एडजेक्टिव का वर्क है वो नाउन को क्वालिफाई करेगा. तो एडजेक्टिव क्लाउज मतलब एक क्लाउज अगर वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तभी वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लाउज. मतलब यहाँ क्या बोल रहा है? एक क्लाउज अगर एडजेक्टिव वाला काम करेगा, तो एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफाई करना नाउन. तो अगर क्लाउज एडजेक्टिव वाला काम यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी एडजेक्टिव क्लाउज, और इट इज ऑल्सो सेड टू बी अ रिलेटिव क्लाउज. एग्जाम्पल्स: whose big brown eyes pleaded for another cookie that bounced across the kitchen floor. The boy who had rescued the child from the fire was rewarded for his bravery. You can see whose big is a whose big brown eyes pleaded for another cookie. यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैंने रेड कलर से whose that who किया. क्यों? क्योंकि इसको तो रिलेटिव क्लाउज भी बोलते हैं, बिकॉज ये एडजेक्टिव क्लाउज है और वो हमेशा स्टार्ट होगा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा, एडवर्ब से स्टार्ट होगा. ठीक है, जैसे हुज बिग, तो वो आपका यहाँ पे रिलेटिव एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, रिलेटिव एडजेक्टिव. और डैट बाउंस ये वर्क कर रहा है एज अ रिलेटिव एडवर्ब. लेट्स सी टू गेट मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट एडजेक्टिव क्लाउज. So adjective clause always begin with a relative pronoun, and ये सब है who, whom, whose, that, which. Sorry, I have written that for the 2 times. Okay, so ये हमेशा relative pronoun के साथ होगा या तो relative adverb के साथ होगा, and finally it function as an adjective answering the question what kind of, how many and which one.
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ याद करना कि एडजेक्टिव क्लाउड्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर दैट कि वो इस वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है, वो वर्ड क्या है, तो हु है, हुम है, हुज है, डैट है, विच है, फिर व्हेन है, वेयर है, वाई. ये इतने हैं जो 8 वो 8 वर्ड हैं जो हमेशा आगे में होंगे. एडजेक्टिव क्लाउड्स को फाइंड आउट करने में बहुत इजी होगा. ठीक है, अगर ये 8 वाले वर्ड याद हो जाते हैं तो ठीक है. अगर वो लगा हुआ है, अब उसके बाद हमको लगा हुआ है, चलो ठीक है, वो एडजेक्टिव हो गया. लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए अगेन वी हैव टू आस्क दैट क्लाउज. वो क्लाउज के जो वर्ब होंगे उनसे ये क्वेश्चन करेंगे, है ना. वो कहीं पर भी वो क्लाउज यूज़ किए होंगे तो उनसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, व्हाट काइंड, हाउ मेनी एंड विच वन. अगर इन तीनों में से कोई भी एक आंसर कर देता है देन इट इज सेड टू बी एडजेक्टिव क्लाउज. फॉर एग्जाम्पल विल सी हुज बिग ब्राउन आइज प्लीडेड फॉर अनदर कुकी. तो व्हाट काइंड, कैसा, तो हुज बिग ब्राउन आइज, ये आपका क्या हो गया, बिग ब्राउन आइज क्या है, हुज बिग ब्राउन आइज, ये आपका एडजेक्टिव क्लाउज है. क्या है, एडजेक्टिव क्लाउज है. कैसा, व्हाट काइंड, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना. और हुज रिलेटिव क्या है, प्रोनाउन है. ठीक है, ओके, लेट्स से अनदर. दैट बाउंस्ड अक्रॉस द किचन फ्लोर. व्हाट बाउंस्ड, विच वन, हाउ मेनी. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है देन इट इज सेड टू बी एडजेक्टिव क्लाउज. तो दैट बाउंस्ड है ना, ये आपको गया एडजेक्टिव क्लाउज बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम a relative pronoun. Let's see. The boy who had rescued the child from the fire was rewarded for his bravery. The boy, कौन सा boy, what kind of boy, the boy who had rescued the child from the fire. ये पूरा आपका क्लाउज हो गया, who had rescued the child from the fire. ये आपका पूरा एडजेक्टिव क्लाउज है बिकॉज व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ बॉय इट आंसर्ड दैट हु हैड रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम द फायर. एंड ऑल्सो वी कैन सी हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन. तो आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन से अगर स्टार्ट किया हुआ है और रिलेटिव एडजेक्टिव से देन तो वो एडजेक्टिव क्लाउज होगा ही. लेकिन कंफर्मेशन के लिए वी नीड टू आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाट काइंड एंड हाउ मेनी एंड विच वन. अगर ये क्वेश्चन करने के बाद आंसर निकलता है देन इट इज सेड टू बी एडजेक्टिव क्लाउज. ओके, लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ क्लाउज दैट इज एडवर्ब क्लाउज. क्या है, एडवर्ब क्लाउज है. अ क्लाउज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. अब ये क्लाउज ऐसा क्लाउज है जो एडवर्ब का काम करेगा एंड इट कैन बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द सेंटेंस. मतलब ये कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है. कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, एट द बिगनिंग शुरू में भी, एट द मिडिल में भी यूज़ किया जाता है और सेंटेंस में भी, एंड ऑफ द सेंटेंस में भी यूज़ किया जाता है एडवर्ब क्लाउज को. तो एडवर्ब क्लाउज क्या है, जो एडवर्ब वाला काम करेगा. एक क्लाउज जो एडवर्ब का काम करेगा और एडवर्ब का काम क्या है, वो क्वालिफाई करेगा वर्ब को. यानी जो क्लाउज वर्ब को क्वालिफाई करेगा देन इट इज सेड टू बी एडवर्ब क्लाउज. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो टू बेड नाउ. ठीक है, कहाँ जाना है मुझे, टू बेड. वेदर यू लाइक इट और नॉट. माई सिस्टर व्हेन शी इज क्राइंग will turn red in the face. Give us a call when you get back from your trip. So these are the example of adverb clause. These are the example of adverb clause. And how we can identify adverb clause? Okay, let's see. It can be placed at the beginning followed by a comma. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या तरीका है, तो वो आगे में होगा और वो कॉमा लगा हुआ होगा. ठीक है, वो आगे में होगा एडवर्ब क्लाउज और उसके बाद कॉमा लगा हुआ होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि वो एडवर्ब क्लाउज. जैसे वेदर यू लाइक इट और नॉट, वहाँ पे कॉमा है ना, देन इट इज सेड टू बी एडवर्ब क्लाउज. मिडिल में होगा ऑफसेट बाय अ कॉमा, मतलब दोनों साइड में कॉमा लगा हुआ होगा और वो बीचों बीच में होगा. ठीक है, तो माई सिस्टर कॉमा व्हेन शी इज़ एंग्री कॉमा, यू कैन सी इट. तो एडवर्ब क्लाउज ऐसे भी यूज़ किया जाता है. देन
और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस मीन्स डज नॉट नीड अ कॉमा. अब इसको जब लास्ट में होगा तो इट डज नॉट नीड अ कॉमा. डिपेंडिंग ऑन वेयर इट साउंड्स बेटर वी आर एडिंग what? We are adding adverb clause in a sentence. So give us a call when you get back from your trip. Here no comma is used. So this is the way how we can find adverb clause in a sentence. As adjective clause को हम लोगों ने कैसे find out किया है, तो adjective clause को हम लोगों ने कैसे find किया, तो बाय सीइंग दैट रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब होगा. और फाइनली हम लोग को क्वेश्चन करना है व्हाट काइंड एंड विच वन और हाउ मेनी. और एडवर्ब क्लाउज को यूज़ करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू वॉच वो कहाँ यूज़ हुआ है. वो कहीं भी यूज़ हो सकता है और इट कैन फॉलोड बाय अ कॉमा. ठीक है, और लास्ट में वो कॉमा यूज़ नहीं होता है. एडवर्ब क्लाउज इट ऑल्सो बिगन्स विथ, और एडवर्ब क्लाउज को फाइंड आउट करने का एक और तरीका है दैट आफ्टर, इफ, बिकॉज, ऑल दो. ठीक है, ये होता है. और इट ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन ऑफ व्हेन, वाई, वेयर, हाउ मच, हाउ, अंडर व्हाट कंडीशन द एक्शन टेक इन अ सेंटेंस टेक्स प्लेस. मतलब व्हेन का आंसर वो क्वेश्चन करेगा, वाई का करेगा, वेयर का, हाउ मच और हाउ का. ये 5 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एडवर्ब क्लाउज. और 5 तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें से कोई भी अगर एक्शन में आता है, ठीक है, तो अगर वो आंसर दे देता है देन इट इज़ सेड टू बी एडवर्ब क्लाउज. ओके, जैसे हम लोगों ने पढ़ा एडजेक्टिव क्लाउज में क्या क्या क्वेश्चन करता है, तो व्हाट काइंड, हाउ मेनी एंड विच वन. और एडवर्ब क्लाउज में कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, when, why, where, how much and how, and under what condition the subject has, this action has taken place. Okay, so these are the ways to find adverb clause and adjective clause. Now we'll see noun clause. Noun clause में बस आपको इतना याद रखना है, जितना मैंने दिया है 1 से 13 तक वो आप याद रखोगे, then it is very easy for you to identify noun clause in a sentence. So a clause which does the work of a noun is called a noun clause. मतलब एक क्लाउज जो नाउन का काम करेगा. जैसे नाउन का काम क्या है, तो नाउन का काम है दैट इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है, तो अगर क्लाउज किसी के नेम को आइडेंटिफाई करता है, क्लासीफाई करता है, देन इट इज़ सेड टू बी ए नाउन क्लाउज. एंड वेरी इजी टू स्पॉट नाउन क्लाउज टू इज़ टू लुक एट दिस वर्ड. इतना सारा वर्ड दिया हुआ है, देन इट इज़ वेरी गुड टू फाइंड दैट हाउ वी कैन फाइंड नाउन क्लाउज. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है. देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्ब क्लाउज को क्वेश्चन करने के लिए हाउ यूज़ किया हुआ है. ठीक है, लेकिन नाउन क्लाउज में है ना क्वेश्चन नहीं करना है, ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में रहेगा. तो ऐसा नहीं कि हाउ को दे के आप सीधा बोल दो कि एडवर्ब हो गया, नहीं. हाउ वो क्वेश्चन में दिया होगा, और एडवर्ब को फाइंड करने के लिए, एडवर्ब क्लाउज को फाइंड करने के लिए हाउ को हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कैसे किया तब. ठीक है, लेकिन नाउन क्लॉज में हाउ को यूज़ किया रहेगा, हाउ आर यू. ठीक है, तो हाउ, दैट, व्हाट, वॉट एवर, व्हेन, वेदर, वेयर, which, who, whoever, whom, why, whomever, these are the noun words. These are the words which will help you to spot noun clause in a sentence. Okay, so just recap that whatever the question we have to ask from the sentences to know that whether they are adverb clause, whether they are adjective clause, whether they are noun clause. Noun clause को easy identify करना, अगर आप ये 13th जो 13 दिया हुआ है, ये 13 आप लोग पूरा स्टडी कर लेते हो वर्ड, देन इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई नाउन क्लाउज इन अ सेंटेंस. और एडवर्ब को फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू स्टडी दैट इट आस्क द क्वेश्चन ऑफ व्हेन, वाई, वेयर, हाउ मच, हाउ. ठीक है, ये एडवर्ब क्लाउज का क्वेश्चन करेगा टू फाइंड आउट एडवर्ब क्लाउज. और एडजेक्टिव क्लाउज को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट काइंड, how many and which one. Okay, got it everyone? So we have seen today what is clause, what is adjective clause, kinds of subordinate clause, right? And that's it we have seen. So what is clause? A clause is a group of words which contains a subject and predicate, and it is a part of a sentence. Okay, and we have seen kinds of subordinate clause, in which we have seen what is adjective clause. Adjective clause is a clause which works as an adjective. We have seen adverb clause which works as an adverb in a sentence. Okay, and we have also seen a noun clause that works this of a noun.
दैट इज़ नोन एज नाउन क्लाउज. ठीक है, तो ये इतना है, आपको बस स्टडी करना है ये 13 वर्ड विच विल हेल्प यू टू फाइंड नाउन क्लाउज इन अ सेंटेंस. एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब को फाइंड आउट करने के लिए उसका क्वेश्चन याद करना होगा. दैट एडवर्ब क्लाउज यूज़ करता है व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मच एंड हाउ, ये क्वेश्चन करेगा. और एडजेक्टिव क्वेश्चन करेगा क्या, so what kind, how many and which one. So have a nice day to all and bye everyone, and watch the video carefully and study this all the important term of this related to the clause. Okay, bye everyone.